My name is Nidhi Jain and guys, today is the most requested video on my channel. Oh my god, finally we are up with the doubts. Per level doubts video. So in this video you gonna see all the even doubts which you only guys have messaged me or DM me on Instagram, LinkedIn or on YouTube comments itself. So I have compiled, my team has compiled everything in one video. So this video will be the even doubt session video. I hope it will be so much helpful for you. Like in German grammar, in German basic small doubts also we have captured it. So one student will be sitting and one trainer will be sitting. So one student will be asking the question, another trainer has to answer the question. So it's gonna be super duper fun, and this is the first episode for this. Next episode will be for A2, then for B1 and then for B2. So these four criteria, these four playlists, these four episodes will be up for this video. I hope it will be super duper fun because your doubts will be clearing up. So in case you are having doubt for any more video, you can comment down below. We'll be making the another part for it. And guys, if you're watching me for a very first time, then my name is Nidhi Jain. I'm a CEO and the founder of German Gyan. German Gyan is a one-stop solution to make you learn German language online and offline for A1 to C2 all the levels. Teacher training program, brush-up classes, module practice, you can say per module practice, exam preparation of TELC, Goethe, anything. German Gyan is a one-stop solution to all your needs. Let's start the even doubts. I hope it will be super duper helpful for you. I'm so excited. Let's meet in the end of the video. All the very best. Okay Shrishta, whatever doubt you have related to the A1 level, we can discuss it now. So you can ask the question. Okay, sure ma'am. Ma'am, my first question, ki why else is sometimes pronounced as sa and sometimes za. Okay, so this is basically the pronunciation rule. If there is a rule that if you write a vowel after a s, then it sounds like z, the sound that bees make. ठीक है? Vowels A, E, I, O, U. ठीक है? Similar English की तरह. Yes, ठीक है. But अगर s के बाद कोई vowel नहीं है, at that time the sound will come like sa. For example, if you write a word, let's say zone. अब देखो यहाँ पर s के आगे vowel है, तो यहाँ पर इसका साउंड z हो जाएगा. ठीक है? ठीक है. After s. हाँ. After वो ये s के बाद vowel है. Yes. But अगर if you are writing any spelling जहाँ पर s के बाद कोई vowel नहीं है, here the sound will be sa. ठीक है? ठीक है. ये clear है? Okay. Okay. And I have one more doubt related to pronunciation. Like जिसकी why D is sometimes pronounced da and sometimes ta. ठीक है. Okay. So this is again the rule of pronunciation. D का जो साउंड होता है वो ड ही होता है. ठीक है? बट इसका ये रूल होता है, अगर D तुम किसी भी स्पेलिंग के एंड में लगा रही हो, उस टाइम वो ट प्रोनाउंस होएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू राइट HUND, यहाँ पर ये D एंड में आ गया, इसलिए यहाँ पर इसका साउंड विल बी ट. हुंड. ठीक है? बट इफ यू आर राइटिंग सम स्पेलिंग, ठीक है, डॉइच, यहाँ पर इसका साउंड ड रहेगा. तो D का प्रोनाउंसिएशन रूल है, इफ यू आर राइटिंग D एट द एंड ऑफ अ स्पेलिंग, उस टाइम प्रोनाउंस इट लाइक ट, अदरवाइज ड. Clear? Okay. And third question, what is the difference between official time and unofficial time? Okay. So for this, you answer me. Which time pattern we follow in hospitals? 24 hours or 12 hours? 24 hours. ठीक है. On railway stations? 12. 24. Yes. Okay. On airports? 24. Again 24. The same applies in Germany. और यही ऑफिशियल टाइम होता है. ठीक है? ऑफिशियल टाइमिंग मतलब यू हैव टू फॉलो द 24 आवर्स पैटर्न. ठीक है? तो वहां पर टाइमिंग बताते टाइम किस चीज का ध्यान रखना है? व्हाटएवर नंबर इज देयर ऑन योर स्क्रीन, जो भी टाइम एग्जैक्टली हो रहा है वही टाइम यू हैव टू स्पीक. ये ऑफिशियल में होता है. इन ऑफिशियल फॉलो करता है 12 आवर पैटर्न. इट मीन्स दिन के 12 बजे के बाद, जैसे इंडिया में 1 बजता है, अपन घर में जो टाइमिंग यूज करते हैं, फ्रेंड्स के साथ जो टाइम यूज करते हैं, सेम वही इनऑफिशियल टाइम होता है और सेम पैटर्न जर्मनी में फॉलो होता है. ठीक है? दैट मीन्स 24 आवर पैटर्न इज ऑफिशियल,
गर्ल वाला पैटर्न इज अनऑफिशियल। एक बार आप जो ऑफिशियल टाइम के इनऑफिशियल टाइम के एग्जांपल बताओ। ठीक है, लेट्स से 1 PM है, ठीक है। अगर इसे ऑफिशियल टाइम बोलना है ना, देन यू विल से एस्ट इस्ट 13 Uhr, बिकॉज यहाँ पर वी नीड टू फॉलो द 24 आवर पैटर्न, ठीक है। बट हाँ, बट अगेन अगर इसी को इनऑफिशियल बोल रही हो, देन यू कैन से एस इस्ट 1 Uhr, बिकॉज 12 के बाद वापस ठीक है, ठीक है, ओके ओके। एनी अदर डाउट? नो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाक एंड सू प्रीपोजिशन? ठीक है, ओके। नाक एंड सू दोनों डायरेक्ट प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। सू का मतलब होता है टू, नाक का मतलब होता है आफ्टर, ठीक है। इन दोनों प्रोपोजिशंस में जो मोस्टली जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, विच इज कि कब नाक लगाना है और कब सू लगाना है, बिकॉज दोनों डायरेक्शंस के टाइम पर काम आते हैं। इफ यू आर गोइंग टू सम प्लेस, वहां पर बहुत टाइम पर सू यूज होता है और बहुत टाइम पर नाक यूज होता है। सो इसका क्या रूल होता है? लेट्स से इफ यू आर इन दिल्ली फॉर नाउ, ठीक है, अगर तुम दिल्ली के बाहर जा रही हो, दिल्ली की बाउंड्री के बाहर, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू से आई एम गोइंग टू राजस्थान, ठीक है, तुम यूज करोगी नाक, नाक इश्के नाक राजस्थान, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर तुम दिल्ली के बाउंड्री के अंदर ही कहीं जा रही हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू सम मार्केट, ठीक है, लोकल एरिया में, यस, एट दैट टाइम यू कैन यूज सू, ठीक है। बट कहीं पे देखा जाता है कि हम होम के साथ भी सू यूज नाक यूज करते हैं, ठीक है, ओके। सो दैट इज योर एक्सेप्शनल केस। तुम कहीं पर भी हो, तुम घर के बगल में हो, तुम्हारी बाउंड्री के बाहर हो, बाउंड्री के अंदर हो, बट अगर तुम्हें ऐसा बोलना है मैं घर जा रही हूँ, दिस इज फिक्स इश गे नाक हाउस, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस होता है। अदरवाइज वी यूज नाक व्हेन वी आर अगर मैं घर के अंदर हूँ, ओके। इफ यू आर ऑलरेडी इन द हाउस, उस टाइम यू कैन यूज इश बिन इन हाउस, सॉरी इश बिन सू हाउस, तब सू लगेगा, हाँ, ठीक है, क्लियर है? क्लियर। नाक का जो एक्सेप्शनल केस होता है, इफ यू आर गोइंग टू योर होम, इश गे नाक हाउस। अगर तुम ऑलरेडी घर में हो, इश बिन सू हाउस। अगर तुम बाउंड्री के बाहर जा रही हो, इश गे नाक आगरा, इश गे नाक डॉइचलैंड। क्लियर? ओके, या ओके। नेक्स्ट, इन क्वेश्चन नंबर 5 कि हाउ मेनी टाइप्स जी आर देयर, बिकॉज आई एम ऑलवेज कंफ्यूज्ड जी। फॉर नॉर्मली क्या टेबल में देखा 3G होते हैं, ओके, बट कहीं कहीं पर 4G का भी इंक्लूड किया गया है कि 4G, तो 4th G मींस मतलब 4G का मीनिंग क्या है? ओके। एक जी होता है जो शी के लिए यूज होता है, ठीक है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, सिंगुलर के लिए। सेकंड जी होता है जो हम जैसे हिंदी में किसी को बात करते हैं किसी बड़े से, तो हम बोलते हैं आप, सेम वही रिस्पेक्ट देने के लिए तो सिंगल पर्सन वी यूज जी, ठीक है। थर्ड जी होता है जो ही शी इट का प्लूरल होता है, विच इज दे, ठीक है। फोर्थ जी जो अभी हमने सिंगुलर में जी यूज करा आपके लिए, सिंगुलर में उसी सिंगुलर का प्लूरल फॉर्म होगा। एक जगह हम बोलेंगे आप, एक जगह हम बोलते हैं आप लोग, तो जब आप लोग बोला वो प्लूरल केस हो गया, उस प्लूरल के लिए अगेन हम जी फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो 4 जी कौन से हुए? द फर्स्ट वन इज शी, सेकेंड इज आप, थर्ड इज दे, फोर्थ इज आप लोग। क्लियर? ठीक है, ओके। एनी अदर? या एंड क्वेश्चन नंबर 6 कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइंड एंड निस्ट? ओके, so for kind and nicht, ओके, इज इट क्लियर कि दोनों निगेट करने के काम आते हैं, ठीक है। काइंड को हम निगेट करेंगे इफ देयर इज अ अनवेस्टेड आर्टिकल, ठीक है, मतलब अगर सेंटेंस में अनवेस्टेड आर्टिकल है और उस आर्टिकल को निगेट करना है, दैट टाइम यू विल यूज अनवेस्टेड आर्टिकल आइन आइन आइन, यस, ठीक है। उस केस में यू विल यूज काइंड टू निगेट। काइंड का टेबल होता है विच यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इश बिन आइन मन, ठीक है। इसको नेगेट करना है, इसे नेगेट करने के लिए वी विल यूज काइंड बिकॉज हमारे पास यहाँ पर अनवेस्टेड आर्टिकल है, ठीक है। व्हाट विल बी योर सेंटेंस? इश बिन काइंड मन, ठीक है। नाउ निष्ट को निष्ट नेगेट करता है टू अ वर्ड, ठीक है, टू एन एडवर्ड
to an adjective, to a destined article, and personal pronoun. ठीक है? It means if you are saying ich laufe jeden Tag, ठीक है? अब यहाँ पर देखो ये जो jeden Tag है ये एडवर्ब है, ये नेगेट होगा इस nicht से, ठीक है? What you have to do? Ich laufe nicht jeden Tag. Clear? Clear. Okay. Okay. And my question number 7 कि जो वेक्सल प्रीपोजिशन होती है तो उसमें अपोजिटिव डाटिव दोनों प्रीपोजिशंस का होता है इंक्लूड, तो हम कैसे पहचानेंगे कि अपोजिटिव प्रीपोजिशन है या डाटिव की प्रीपोजिशन है? वेक्सल प्रीपोजिशन, सी जो वेक्सल प्रीपोजिशन होती है उसका फिक्स होता है कि या तो वो अपोजिटिव ऑब्जेक्ट लेगी, ठीक है, या वो डाटिव लेगी. नाउ द प्रॉब्लम इज कि वो कब अपोजिटिव लेगी और कब डाटिव लेगी, ठीक है? इसका क्या रूल होता है? इफ देयर इज अ मोशन इन अ सेंटेंस, ठीक है, अगर तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहे हो, देयर इज अ मोशन, उस टाइम यू विल टेक अपोजिटिव, ठीक है? अगर कोई मोशन नहीं है दैट मींस यू नीड टू टेक डाटिव ऑब्जेक्ट. वेक्सल प्रीपोजिशंस का लिस्ट था, कौन कौन से वेक्सल प्रीपोजिशंस होती है, उनमें से एक हम ले सकते हैं इन, ठीक है? दिस इज अ वेक्सल प्रीपोजिशन. इट मींस अब हम कोई भी सेंटेंस लिखेंगे, अगर उसके अंदर मोशन है वी विल यूज अपोजिटिव ऑब्जेक्ट, अगर मोशन नहीं है then we will use dative object. For example, ich gehe in den Supermarkt. ठीक है? एक ये एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ich bin im Supermarkt. डिफरेंस देखो, ich gehe in den Supermarkt, इसमें पोजीशन में चेंज है, पॉइंट ए से यू आर गोइंग टू पॉइंट बी, ठीक है? इसलिए यहाँ पर ये है अपोजिटिव, ठीक है? सेकंड सेंटेंस पे यू आर सेइंग ich bin im Supermarkt, मैं सुपरमार्केट में हूँ, दैट मींस नो चेंज ऑफ मोशन, ठीक है? पॉइंट ए से पॉइंट बी पर नहीं जा रहे हो, कोई मोशन नहीं है, दैट मींस दिस इज डाटिव. सेम रूल अप्लाई होता है जितनी भी वेक्सल प्रीपोजिशंस होती है, जब भी मोशन है, जब भी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहे, एट दैट टाइम यू ऑल हैव टू यूज अपोजिटिव प्रीपोजिशन, अदरवाइज यूज डाटिव एज एन ऑब्जेक्ट. क्लियर? ओके. मोशन होगा हाँ तो अपोजिटिव, Yes. मोशन नहीं होगा, बाउंड्री में होंगे तो डाटिव. यस. ओके मैम, माय क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस, नहीं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोडाल वर्बल? ओके, सी मोडाल वर्ब का सेंटेंस स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट आएगा, यू कैन नोट इट डाउन. फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट एक मिनट, हाँ, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड प्लेस पर मोडाल वर्ब, मोडाल वर्ब सेकंड प्लेस पे जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होगी, ठीक है? ओके. थर्ड प्लेस पर कम्स योर ऑब्जेक्ट, एंड फोर्थ प्लेस पर योर एक्शन वर्ब, मींस योर मेन वर्ब जो इंफिनिटिव फॉर्म में आएगी, विदाउट कॉन्जुगेट, विदाउट कॉन्जुगेशन, ठीक है? ये होता है मोडाल वर्ब का सेंटेंस स्ट्रक्चर. हमेशा याद रखना, मोडाल वर्ब कॉन्जुगेट होगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड वर्ब की प्लेसिंग कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है? ओके. दैट मींस मोडाल वर्ब ऑलवेज ऑन द सेकंड पोजीशन, एक्शन वर्ब ऑलवेज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. मतलब अगर मोडाल वर्ब होगा सेंटेंस में तो वो कॉन्जुगेट होगा, जो हमारी एक्शन वर्ब होगी वो सेम एज इट इज रहेगी विदाउट कॉन्जुगेट. हाँ, और वो सेंटेंस के एंड में जाएगी, एंड ठीक है? जाएगी हमेशा. हाँ, ठीक है. ओके, मैं एसोसिएटेड है मोडाल वर्ब से कि डिफरेंस बिटवीन म्योस्टन एंड वॉलन. ठीक है. ओके, ये दोनों वर्ड्स, एक है वॉलन जिसका मतलब होता है बॉन्ड, बॉन्ड, ठीक है? एक होती है म्योस्टन जिसका मतलब होता है वुड लाइक टू. नाउ जो तुम्हारा वॉलन है ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग डिजायर शो करता है. For example, if you are saying I want to go to Germany, that means it is a strong desire that you want it anyhow, ठीक है? At that time you use wallet. But if you say like I would like to have tea, that means वो तुम्हारा strong desire नहीं है, तुम्हें अच्छा लगेगा but if you get the tea, ठीक है? So ये मोस्टली कब यूज होता है, लाइक इफ वी गो टू समवन्स प्लेस और वहाँ पर वो लोग पूछते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, सेम हमें भी यही इसीलिए रिप्लाई करना होता है यूजिंग म्योस्टन
I would like to have tea or coffee. So ich möchte Tee trinken, ich möchte Kaffee trinken. And if we are using the same sentence using wollen, ich will Kaffee order tea, तो वहाँ पर वो तुम्हारा strong desire show कर रहा है. So you should know the difference कहाँ पर wollen use करना है, कहाँ पर möchte use करना है. तो ये इमोशंस है, मतलब कि strong desire और हाँ strong desire है, then use wollen. ठीक है. So this is the difference between both. otherwise möchte. Yes. So see, जो ट्रेंड वाली verbs होती है उनके prefixes लगे हुए होते हैं. ठीक है. For example, uncommon. और you can say abfahren. ठीक है. So जो ट्रेंड वाले verbs होती है ना, वो उनके prefixes होते हैं an, ab, aus, auf, ein, zurück, by, su and so on. जब भी तुम्हारे verbs के आगे if you see these prefixes, that means वो ट्रेंड वाले verb है. और इसका sentence structure क्या होता है? Subject, then your verb, then your object and your prefix at the end. ठीक है. Means ये जो prefixes हाँ, ये जो prefixes है ये sentence के end में आ जाएंगे. इन prefixes के साथ जो verb लिखी है वो conjugate हो जाएगी subject के according. Yes. ये verbs conjugate होगी second place पे according to the subject. ठीक है. But confuse मत होना because there are some verbs जो prefixes जो ट्रेंड वाले लगती है but वो ट्रेंड वाले नहीं होती है. ऐसे prefixes कौन से होते हैं? Ser, fair, and, am, ge. That means if a verb is starting with these prefixes, that means they are not separable. ठीक है. वो ट्रेंड वाले verb नहीं होगी. That means you need to learn these prefixes so that you won't get confused कि कौन से ट्रेंड वाले हैं कौन से नहीं है. ठीक है. मतलब ये प्रीफिक्स जो ये स्टार्टिंग में लगे होंगे वर्ब के. हाँ. ये सेपरेट नहीं होंगे. हाँ. ये उसके साथ ही रहेंगे. हाँ. बिकॉज वो ट्रेंड वाले नहीं होती है, वो बस लगती हैं कि वो ट्रेंड वाले हैं. ठीक है. ठीक है. ये होते हैं प्रीफिक्सेस जो सेपरेट होंगे. ये होता है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो प्रीफिक्सेस हैं वो एंड में चला जाएगा ताकि वर्ड यहाँ पर कॉन्जुगेट होगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट द सेकंड प्लेस. क्लियर. ओके. आई होप अब तुम्हारे इवन में कोई डाउट नहीं है. ठीक है. सो प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम एंड कीप लर्निंग जर्मन विद जर्मन. ओके. श्योर. बाय. चीयर्स. I hope you are clear with the even grammar doubts. In case you have still more doubts, you can comment down below. In case you have any video suggestion, you can comment down below. We'll catch you in the next one. Till then, keep learning German with German Gyan. Stay tuned for the second episode's doubt session for E2 level. I hope it will be super duper fun. Let's wait. Until then, keep learning German with German Gyan. Take care. Cheers.